Hello student, in previous video we have discussed the different type of numbers, rational numbers and irrational numbers, and we represent them on a number line. And also we find some rational numbers between the two given rational numbers. Now in this video we discuss some other properties of the rational and irrational numbers. Now what are the rational numbers? Rational numbers are those numbers which can be written in the form of p by q. P and q are integers and q is not zero. We take some example of rational numbers and we simplify them, means we expand in decimal form. So here suppose 1 by 5 is a rational number. If we simplify this or denote in the form of decimals, then it becomes 0.2. It will be up to one place of the decimal, because in the division the remainder becomes 0. So the process of division terminated after one decimal or after one step. Now what about 3 by 4? If we divide 3 by 4, what we get? 0.7 times, first step होगा 7 times, then next 5, 0.75. Again the process terminated. We get remainder, माने ये completely divisible हो गया और जो division का process है वो end हो गया, remainder 0 आ गया. Now look at this example, 2 by 3. What about 2 by 3? If we divide it, it becomes 0.666, and this process will continue up to number of steps, uncountable. This process doesn't end. माने यहाँ पर जब आप 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवीजन की जो प्रोसेस है वो एंड नहीं होगी, ये कंटिन्यूस चलती रहेगी. और ये जो कोशेंट है, माने जो हमको मिल रहा है कोशेंट, ये इसमें एक स्पेशल बात है. एक नंबर ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है. A single number is repeating continuously, 6 6 6 6 like this. Okay. Now what about some other example? Take it 43 divided by 10, it becomes 4.3. Again this process terminated. Okay. So and what about 8 by 6? What about 8 by 6? So again you divide it, 6 ones are 6, 2, 6 threes are 18, again 2, 6 threes are 18, 6 threes are again a number in the quotient is repeating continuously and process doesn't end. So we have, if we look at this process, we get two type of decimal expansion. In one, which the division process ends after certain step, single step or 2 step or 3 step like this. But in some examples of rational numbers, the division process doesn't end, means the expansion is continuously up to infinite. But in this process, the numbers are repeating in quotient. So in rational numbers, rational numbers have the decimal expansion is either terminating or non-terminating, recurring. ये दो तरीके के हमारे पास डेसिमल है. ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं जिसमें डिवीजन प्रोसेस क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया. ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग.
यानी ये जो नंबर है कोशेंट में ये रिपीट हो रहा है। अब ये सिंगल में भी हो सकता है, सेट में भी हो सकता है, 2 डिजिट के बाद 3 का पेयर हो सकता है, 4 का हो सकता है, ग्रुप, इस तरीके से ये रिपीट होगा। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, recurring or repeating. Okay, now vice versa of this, if any decimal representation is either terminating or non-terminating recurring, then it will be a rational number, it will represent a rational number, इसका vice versa। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक एग्जाम्पल देखिए, 2.120 1200 1200 1240 लाइक दिस, अगेन 12, इस तरीके से। क्या यहां पर कोई एक सेट रिपीट हो रहा है? नहीं, 1 2 दिख रहा है, बट 0 single 0 will be there. After second set there will be 2 0, after third set there will be 3 0। तो ये जो रिकरिंग है वो नहीं है। आपको ऐसा देखने में लग रहा होगा कि वही नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं। यहां पर देखिए सिंगल नंबर कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है। यहां पर एक बार 0 आया, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार आया, माने ये जो अकरेंस है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये एक पर्टिकुलर उसमें रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग। तो अब ये क्या हो गया? इस तरीके का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये तो इसमें नहीं आएगा। विल इट कंटेन्स इन दिस ग्रुप? नो। तो ऐसे नंबर्स को जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होगा, बट दिस नंबर एग्जिस्ट, रियल नंबर है, तो ये क्या होगा? इर्रेशनल नंबर, irrational number। So there are, what are the decimal expansion of irrational number? The decimal expansion of irrational number are non-terminating, non-recurring। Okay, तो ये क्लियर हो गया। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम डिवाइड करके देख सकते हैं कि वो टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो इर्रेशनल नंबर है वो तो एक पर्टिकुलर पैटर्न है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होगा, तो आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। अब देखिए एक और बात इसमें हम और देखेंगे अभी इसी एग्जांपल में, कि जो रैशनल नंबर्स हमने लिए थे इनमें कुछ में टर्मिनेट हो रहा है, कुछ में नॉन टर्मिनेट हो रहा है। तो क्या हम विदाउट डिवीजन हम ये पता कर सकते हैं, कैन वी आइडेंटिफाई विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन दैट द रैशनल नंबर is terminating expansion is non terminating decimal or non terminating repeating decimal? इसके लिए हम यदि इनके डिनोमिनेटर्स को देखें, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? 5 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 10 है। तो देखिए 5 को यदि हम ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनके हम प्राइम फैक्टर्स निकालें, प्राइम फैक्टर क्या है? 5 के 5 into 1, 4 के क्या आ रहे हैं? 2 into 2 into 1, then 10 के 2 into 5, बट 6 में क्या हो रहा है? 2 into 3 into 1। तो देखिए यहां पर जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर दैट इज क्यू आर आइदर 2 और 5 और बोथ। जो क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये या तो 2 है या 5 है या दोनों है। यदि ऐसी सिचुएशन आपको मिलती है तो आप बिना उसको डिवाइड किए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स द फैक्टर्स ऑफ Q means denominator, P by Q, जो हमने रैशनल नंबर लिया था, are in the form of
2 raised to n into 5 raised to m. 2 raised to m into 5 raised to m का मतलब ये है कि 2 के कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, 5 के भी कुछ हो सकते हैं, या 5 के ना हो 2 के बनो, या 5 के हो 2 के ना हो. इस तरीके से ओनली 2 and 5 के फॉर्म में यदि वो फैक्टर्स हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. बट अदर देन 2 कोई और भी है, जैसे यहाँ 6 में आपने देखा 2 तो है बट 5 नहीं है, उसके साथ 3 है, तो ये कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स. ओके, तो हम विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन हम ये देख के बता भी सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा या टर्मिनेटिंग नहीं होगा. ओके, नाउ वी कम टू द next some questions of the exercise 1.3. okay, now in the third question of exercise 1.3 we have to express 0.47 bar in the form of p by q. अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि कोई p by q का फॉर्म है तो उसको हम डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जस्ट डिवीजन प्रोसेस है. अब यहाँ पर ये डेसिमल फॉर्म है तो इसको हम p by q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो आइदर आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा. तो यहाँ पर देखिए, ये जो हम इसको एज्यूम कर लें कि लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार. इसका मीनिंग क्या हुआ? 0.47777 लाइक दिस अप टू इनफाइनाइट, ये इसका मीनिंग है. अब यहाँ पर देखिए, आफ्टर 1 डिजिट दिस रिकरिंग इज happening, so we multiplied by this whole by 10. इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 10x equals to the decimal shift up to 1 digit up to right side, that is 4.7777 like this. Okay, now we break this 0.777 in this form. इस फॉर्म में हम इसको ब्रेक करेंगे. ये पार्ट जो है कैसे करेंगे? देखिए, 4.3 प्लस 0.4777 लाइक दिस. ओके, ये जो 7 था उसको हमने 0.3 और 0.4 में ब्रेक कर लिया तो ये 4.3 हो गया, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है अगेन इट विल बी द फॉर्म ऑफ x. तो ये 10x है. अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 10x इक्वल्स टू 4.3 प्लस x. ये क्या था? अभी हमने इसको क्या एज्यूम किया है? x एज्यूम किया है. x को ट्रांसपोज कर दें तो ये हो जाएगा 10x माइनस x इज 43/10. यहाँ से हमने डेसिमल को रिमूव कर दिया, ये हो जाएगा 9x इज 43/10. सो x becomes 43/90. So in this way x is what? 0.47 bar, or you may write 0.47 bar is 43/90. ओके, तो इस तरीके से हम ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है उनको हम डिनोट कर लेंगे. टर्मिनेटिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे टर्मिनेटिंग के लिए 8.275 है, इसको p by q के फॉर्म में करना है. आप डायरेक्ट इसका डेसिमल रिमूव कर दीजिए 1 and how many digits? 3 digits, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. तो टर्मिनेटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है. नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसे कुछ रिपीटिंग सेट होंगे जो कई बार डबल डिजिट में रिपीट हो रहे हैं, उनको शिफ्ट कर लेंगे तो बाकी रिमेनिंग एज इट इज होगा. तो ये जब आप 1-2 क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इनको हमको रिमूव करना है या p by q के फॉर्म में डिनोट करना है. Now the next question of the exercise, question number 4. Express 0.9999 up to infinite in the form of p by q. Are you surprised by the answer? ये कुछ एक नया सेंटेंस है. Are you surprised by the answer? अब देखेंगे क्यों ऐसा इसमें कहा गया है और इसको डिस्कस करेंगे कि आखिर ये है क्या. तो देखिए, इसको सॉल्व करने का जो पैटर्न है वो वही है जो अभी हमने पहले देखा था. लेट x is 0.9999 up to infinite. It is non-terminating recurring decimal and single digit is repeating. So multiplying by 10. So 10x becomes 9.9999 up to infinity. This can be written as 9 plus 0.999
up to infinity. Okay, so this is 10x. Now what is this? 0.9999, it is x. So this becomes 10x equals to 9 plus x. Okay, transposing x to other side, 10x minus x is 9. So 9x equals to 9. So x becomes 9 by 9, that is 1. So x equals to 1, or you can write 1 by 1 upon 1. अब यदि हम इसको लिखें तो ये क्या होगा? 0.999 up to infinity is actually 1. ये आंसर आ रहा है. Are you surprised with this? हाँ? Why? ये क्यों होगा ऐसा? देखिए, ये जो लेफ्ट साइड में है ये डेसिमल में है और ये इंटीजर है, तो डेसिमल और इंटीजर दोनों इक्वल हो रहे हैं. 0.99999 up to infinite, it means it is very close to 1. It is very close to 1. ये इसका मीनिंग है. आगे चल के जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो ये लिमिट होता है कि जब कोई एक पॉइंट, मान लीजिए ये 1 है और कोई पॉइंट इसके नियरर पहुंच रहा है, नियरर एज पॉसिबल, माने जस्ट 1 को टच करने वाला है. 1 का जो क्लोजेस्ट नियरेस्ट जो पॉइंट है दैट इज 9.999999 अप टू इन्फिनिटी. 1 से क्लोजेस्ट माने 1 से जो क्लोजर जो पॉइंट है, क्लोजेस्ट पॉइंट है, दैट इज 0.9999 अप टू इन्फिनिटी, मीन्स इट इज नियरली 1. इट इज नियरली 1. तो ये इसका मीनिंग है ना. देखने में ये थोड़ा सा अलग लग रहा है लेकिन उसका जो मीनिंग है वो एक ही है कि ये जो वेरी नियरर टू क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ 1, closest value of 1, that is 1. Okay, now we come to the next question of exercise, question number 8. Find 3 irrational numbers between the rational numbers 5 by 7 and 9 by 11. As we know, between any two numbers there are infinite numbers. Between two rational numbers there are infinite rational numbers, and as well as infinite irrational numbers also. Between two rational numbers there are infinite irrational numbers, infinite rational numbers, means between two numbers there are infinite numbers. Okay, we have to find the 3 irrational numbers. Out of infinite we have to write only 3. So here 5 by 7 we write it in the form of decimals. Okay, so it will be 0.5 by 7. So 7 7s are 49, 1, and then 7 1s are 7 3, 7 4s are 28, then 7 2s are 14, then 6, 7 8s are 56, like this. नॉन टर्मिनेटिंग आएगा बट रिपीटिंग होगा. यदि आप करके देखें तो ये रिपीटिंग होगा. इसके पहले क्वेश्चंस में आप करके देखेंगे कि जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो सेट ऑफ नंबर्स जो है वो रिपीट होगा. ओके, 9 by 11 0.9 डिवाइडेड बाय 11 0.8, 88 2 रिमेनिंग होगा. 11 1s are 11, then 9 again 8 1 8 1, इस तरीके से ये रिपीट होगा. Here the set of 2 digits repeating continuously 8 1 8 1 8 1. अब हमारे पास ये डिवीजन करने का पर्पस हमारा क्या था कि ये हम देखें कि 5 by 7 और 9 by 7 की जो वैल्यू है वो क्या है. 5 by 7 is greater than 0.71. 9 by 11 is greater than 0.81. Means we have to write the irrational numbers between 0.714 and 0.8181 like this. माने इन दोनों के बीच में हमको ये लिखना है. तो अब देखिए जो भी irrational number होगा, फर्स्ट irrational number, there are infinite numbers. तो उनमें आपको केवल क्या ध्यान रखना है, you have to remember that its value will be greater than 0.71. ओके, 71 से ग्रेटर होना चाहिए. तो हमने
यहाँ से 0.72। अब 0.72 के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, नॉन रिकरिंग होना चाहिए और एंडलेस होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप पैटर्न वाइज भी लिख सकते हैं, बिना पैटर्न के भी लिख सकते हैं। कोई भी नंबर किसी भी ऑर्डर में आप लिखते जाइए अप टू इनफाइनाइट, इट विल बी एन इर्रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ एक पैटर्न में आपको ध्यान रखने के लिए, जैसे 72, अब हमने 0 रख दिया, 7200, जैसा हमने पहले एक एग्जाम्पल लिया था, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से ये एक नंबर हो गया। इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.714, इससे ग्रेटर है और इससे स्मॉलर है। सेकेंड हम लिख सकते हैं 0.7317311 73111 73111 लाइक दिस, ऐसे भी लिख सकते हैं। 0 रिपीट ना करके 1 कर दिया, या किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। ओके, एंड थर्ड हमने लिखा 0.801 then 8001 8001 लाइक दिस। तो ये ऐसे आप कोई भी नंबर्स जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए, नॉन रिकरिंग होने चाहिए। नॉन रिकरिंग, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो नंबर्स आ रहे हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए एक आध और एग्जांपल आपको दे दें, 0.812134310278 लाइक दिस। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, क्योंकि नंबर्स जो है किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल है। ये इसलिए कि एक पैटर्न वाइज आपको मिल जाएगा, ये विदाउट पैटर्न है। तो देयर आर इनफाइनाइट, आउट ऑफ इनफाइनाइट वी हैव टू राइट ओनली 3 4 5, जो भी नंबर आस्क है वो लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि मान लीजिए कोई भी ऐसे नंबर्स दिए हैं, अब आपको देखना है कि ये किस तरीके का होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो रिपीटिंग है ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। यदि मान लीजिए ये नहीं लिखा हुआ, ये नंबर 1 लिखा हुआ है, तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये कैसा होगा, ये रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये 0.81 है। ओके, इसमें भी जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर एक रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रिकरिंग है, तो ये रैशनल नंबर होगा। यहाँ पर जब आप देखेंगे कोई एक पैटर्न नहीं दिख रहा आपको, रिकरिंग नहीं है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये रैशनल नंबर्स का एग्जांपल है। तो हम डेसिमल्स को देख के भी बता सकते हैं। जैसे √2, इसको जब आप डेसिमल में लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होगा। √3 की वैल्यू जब आप लिखेंगे, पाई की वैल्यू लिखेंगे, आप कैलकुलेटर से या कंप्यूटर से जब ये वैल्यूज निकालेंगे नंबर ऑफ प्लेसेस तक, 10 20 50 प्लेसेस तक, तो आप पाएंगे कि कोई रिपीटिशन नहीं है इनमें, है ना। तो ये आप देखकर भी इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Now in this part we have discussed the representing real numbers on the number line। फिर हम उसी बात पे आगे कि रियल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे डिनोट करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ हम एग्जाम्पल हमारे कुछ अलग होंगे। अब एक बार हम ये देखें कि हमारा नंबर लाइन क्या है। नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन in which 0 is in the middle. On the right side there will be positive numbers and on the left side there will be negative numbers। अब यहाँ पर every point on a number line represent a unique number। मैंने नंबर लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट है, there are infinite points on the number line, so each point represent a unique number। each point represent a unique number। तो हर एक नंबर के लिए एक पॉइंट है, हर एक रियल नंबर के लिए, फॉर एवरी रियल नंबर देयर इज अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, और फॉर एवरी रियल नंबर देयर विल बी अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, और एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ नंबर। ओके, वाइस वर्सा। अब यहाँ पर कुछ बातें बहुत सिंपल हैं जो आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 3 को रिप्रेजेंट करना है, 3 इज एन इंटीजर, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो 3 इज this will be under this will be 3। ओके, 3 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये दिख रहा है। मान लीजिए 2/5 करना है, अब 2.5 करना है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब यहाँ थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा। 3 के लिए -3 -1 के लिए हमें सोचना नहीं पड़ा, नंबर लाइन पे दिख रहा, हमने फट से कर दिया।
2.5 के लिए हमको एक मोमेंट सोचना पड़ रहा है कि दिस वैल्यू लाइज बिटवीन 2 and 3, ओके। और ये क्या है 0.5 मीन्स फर्स्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल साइन, मीन्स अ यूनिट इज डिवाइडेड, अ यूनिट, ये जो यूनिट है ये कितने पार्ट में डिवाइड है, 10 पार्ट्स में, क्योंकि सिंगल डिजिट है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो फिफ्थ पार्ट है ये 2.5 होगा। 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5, सो दिस इज 2.5। मैंने इसमें हमको सोचना पड़ा, लेकिन हमने यूनिट को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो सिंगल डिजिट आफ्टर डेसिमल साइन उसको हम एग्जैक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट 2.52, अब क्या हो गया, देयर आर 2 डिजिट, 2.5 तक तो हो गया था। अब इसका मीनिंग ये है कि ये जो यूनिट है ये कितने पार्ट में डिवाइड है, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। अब आप इसको 100 पार्ट में डिवाइड कीजिए, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईच स्मॉल पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट, सो 10 into 10 100। तो यहाँ पर पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा हमारे पास। तो इस ऐसे कंडीशन में जब मोर देन 1 डिजिट होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको मैग्नीफाई करना पड़ता है। जैसे कई बार आप बहुत छोटी चीज हो तो उसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करना पड़ता है। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देता है, बहुत बारीक, बहुत, जैसे आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं, वो उस पार्टिकल को 1000 लाख टाइम्स, 2 लाख टाइम्स, 10 लाख टाइम्स इंक्रीज कर देता है, तब हम उसको देख पाते हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे नंबर्स, ऐसे डेसिमल्स जो डेसिमल के बाद इसमें 2 और मोर डिजिट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन के ऊपर हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब ये क्या है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यहाँ पर ही आप देखिए। अब जैसे मान लीजिए हमको ये रिप्रेजेंट करना है 2.52 को, ओके। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि 2.52। अब देखिए 2.52 इज ग्रेटर देन 2.5 एंड लेस देन 2.6, ओके। तो ये 2.5 ये है, 2.6 ये है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है इसको मैग्नीफाई करेंगे। 2.5 और 2.6 को मैग्नीफाई कर दिया हमने। ये सपोज 2.5 है और ये 2.6 है। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया, ओके। अब देखिए ये होगा 2.51 2.52 2.53 2.54 2.56 2.57 2.58 2.59 1 2 3 4 5 सॉरी 5, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, 2.59 और ये स्केल से आप करेंगे इक्वल डिस्टेंसेस पर आ जाएंगे। अब देखिए आपको क्या रिप्रेजेंट करना था 2.52, तो ये जो पॉइंट है 2.52 इज द नंबर। तो हमने क्या किया, ये जो पोर्शन था इसको क्या कर लिया, मैग्नीफाई कर लिया। तो ये एक प्रोसेस है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब ये एक बार मैग्निफिकेशन हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है। जब तक कि आप उस रिक्वायर्ड नंबर तक नहीं पहुंच जाते तब तक आप उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं। और ये हम लोग मैग्नीफाई करते हैं 10 यूनिट को 10 स्मॉल पार्ट्स में, क्योंकि हमारे पास जो स्केल है उसमें 1 सेंटीमीटर को 10 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हमारे पास ये एक फैसिलिटी है स्केल की, जिससे हम यूनिट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए हम एक्सरसाइज का एक कोई क्वेश्चन लेते हैं, उससे भी और आपका ये डाउट जो है वो क्लियर होगा। नाउ देयर इज एन विजुअलाइज 3.765 क्वेश्चन। फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.4, विजुअलाइज 3.765
765 on the number line, on the number line by successive मैग्निफिकेशन। ओके, अब यहाँ पर इसको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से हमको क्या करना है, विजुअलाइज करना है, माने इसको डिनोट करना है नंबर लाइन के ऊपर। ओके, तो अब यहाँ पर हाउ मेनी डिजिट्स भी देयर, 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल साइन। तो यहाँ पर हमको एटलीस्ट 2 और 3 स्टेप करने पड़ेंगे। तो पहला स्टेप हमारा ये होगा, पहले तो हम ये देखें कि ये 3.765 जो है इट इज ग्रेटर देन 3.7 एंड लेस देन 3.8। तो माने ये जो नंबर लाइन है इसमें मान लीजिए ये 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 4 हो गया, इसके पहले भी पॉइंट्स होंगे। अब ये जो 3.567 ये 3.7 है और ये पॉइंट 3.8 है। ओके, यानी ये जो हमारा 3.765 है वो इसके बीच में कहीं होगा। ओके, हम क्या करेंगे, इस पार्ट को मैग्नीफाई करेंगे। क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे। मैग्नीफाई करने का पर्पस ये है हमारा कि हम ये जो यूनिट है, ये जो 3.7 है और 3.8, इसको हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बाय मैग्निफिकेशन। जैसे यहाँ हम छोटे छोटे में करते, लेकिन इसको हमने मैग्नीफाई कर लिया तो हमारे पास स्पेस हो गया। तो अब ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये अब हमारे पास देखिए ये पॉइंट क्या होगा, 3.71, ये 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, ये वाला 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.80। ओके, अब ये देखिए नाउ यहाँ पर आपको 3.765 is greater than 3.76 and less than 3.77। ओके, 65 है तो 760 भी लिख सकते हैं, या 3.76 से ग्रेटर है, 3.77 से स्मॉलर है। तो देखिए 3.76 कहाँ पर होगा, ये होगा, और 3.77 ये हो गया। अब इसको फिर हमें मैग्नीफाई करना पड़ेगा। अब देखिए फिर हम इस पोर्शन को फिर मैग्नीफाई करना है, ये 3.76 है और 10 पार्ट्स इसको इक्वली डिवाइड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा 3.77। हमने क्या किया, इस पोर्शन को फिर मैग्नीफाई कर दिया। अब ये क्या हो गया, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है ना। ये हो जाएगा 3.766, 3.767, इस तरीके से ये पॉइंट्स आगे आ जाएंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा 3.765। तो ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन है। देखिए ये हमने यूनिट को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, हमारे स्केल में ये फैसिलिटी है। फिर ये जो 1 पार्ट था 1/10 ऑफ यूनिट, उसको 10 पार्ट में डिवाइड किया, माने हमने क्या कर लिया, अब इसको 100 पार्ट्स में कर लिया, 10 और 10 100 हो गया। फिर यहाँ पे जो पॉइंट्स था उसको फिर तो हमने इस तरीके से इसको 1000 प्लेस तक यूनिट को डिवाइड कर लिया और मैग्नीफाई कर लिया। अब इसमें और भी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है कि डिनोट 0.27 बार, लेकिन अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब क्या होगा, ये तो इसका कोई एंड नहीं है, लेकिन ये होगा कि अप टू 3 प्लेसेस, अप टू 3 प्लेसेस माने 0.277, ये इसका मीनिंग है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको होंगे, तो इसमें फिर वही मैग्निफिकेशन आप कर सकते हैं।
तो ये तरीका है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर सकते हैं। इसके पहले हमने इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर डिनोट किया था। तो अब ये क्लियर हो गया कि हम रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर सकते हैं। इन सारे नंबर्स को, रैशनल और इरेशनल नंबर का जो ग्रुप है उसको हम बोलेंगे रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, करते भी हैं, कि दोज नंबर्स कैन बी डिनोटेड ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज के अगले पार्ट को देखेंगे। ओके।